ایف بی آفیشیل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اگلی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو بھی بھرپور لائک اور شیئر کریں۔ بوئنگ کمپنی کی بربادی کا عمل 5 جنوری 2024 سے شروع ہوا جب الاسکن ایئر لائن کے ایک ایئر کرافٹ بوئنگ 737 میکس کا ایمرجنسی ایگزٹ ڈور ہوا میں ہی نکل گیا۔ اس دوران جہاز میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، آکسیجن ماسک نکل آئے، ہر طرف چیخو پکار، انجن اور تیز ہوا کی آوازیں پورے کیبن میں گونج اٹھی۔ یہ ہے پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ہونے والی کنورزیشن۔ Yes, we are emergency. We are depressurized. We do need to return back to. We have 177 passengers. Yes, 18-8. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائٹ کے ساتھ ساتھ ایٹماسفیرک پریشر اور ہوا میں آکسیجن کم ہو جاتا ہے، اسی لیے جہاز کے کیبن میں آرٹیفیشل پریشر بھرا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب اس کا دروازہ ہی نکل گیا تو کیبن کا سارا پریشر لیک ہو گیا۔ الاسکن ایئر لائن کی فلائٹ 1282 میں اس وقت 171 پیسنجرز اور 6 کرو ممبرز موجود تھے۔ خوش قسمتی سے جہاز کو تو واپس پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لینڈ کروا دیا گیا، اور آسمان سے گرنے والے دروازے نے بھی زمین پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن یہ حادثہ نیوز میڈیا کی ہیڈ لائنز بن گیا۔ سب کا ایک ہی سوال تھا کہ بوئنگ جیسی اتنی بڑی اور ریپیوٹیڈ کمپنی کے جہاز کا دروازہ ایسے کیسے نکل سکتا ہے، اور خاص طور پر جب جہاز صرف 2 مہینے پرانا ہو۔ انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم پڑا کہ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور کو ایک تو ری انسٹال کیا گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ جہاز کی ڈیلیوری سے پہلے اس میں 3 نٹ بولٹس نہیں لگائے گئے تھے۔ اس انویسٹیگیشن رپورٹ نے پوری ایئر لائن انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا۔ کیا یہ بوئنگ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے؟ بوئنگ نے خود کو ایک انجینئرنگ فرم سے بزنس ماڈل میں کیسے اور کیوں بدلا؟ اور 2018-19 میں بوئنگ 737 میکس میں ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر گلچ 2 بھیانک ایئر کریشز کی وجہ کیسے بنی؟ ایئر ٹریول کرنے والے زیادہ تر ٹریولرز اس بنا پر جہاز میں سفر کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے ایئر لائنز پر اور جہاز بنانے والی کمپنی پر الاسکن ایئر لائن کے ساتھ ہونے والے اس حادثے نے بوئنگ کمپنی کا یہ بھروسہ، یہ ٹرسٹ توڑ دیا ہے۔ صرف یہی ایک حادثہ نہیں تھا جس نے بوئنگ کمپنی کا ٹرسٹ توڑا۔ 29 اکتوبر 2018 کو انڈونیشیا کی لائن ایئر فلائٹ 610 سکرنو ہتا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوئی۔ یہ بوئنگ کمپنی کا 737 میکس ایئر کرافٹ تھا۔ ابھی ٹیک آف کیے ان کو 13 ہی منٹ گزرے تھے کہ پلین کچھ عجیب سا بہیو کرنے لگا۔ پہلے اس کی نوز ڈاؤن ہوتی ہے، پھر دوبارہ سے جہاز اوپر کی طرف جاتا ہے، اور پھر فائنلی نوز دوبارہ سے ڈاؤن ہوتی ہے اور جہاز جاوا سی میں جا کر کریش ہو جاتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 189 لوگ تھے، جن میں سے ایک بھی نہیں بچ پایا۔ اس حادثے کو ابھی 5 مہینے ہی گزرے تھے کہ اسی قسم کا ایک اور حادثہ دنیا نے دیکھا۔ ایتھیوپین ایئر لائنز فلائٹ 302 10 مارچ 2019 کو بول انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایتھیوپیا سے کینیا کی طرف اڑان بھرتی ہے۔ صرف 6 منٹوں کے بعد پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور قریبی گاؤں میں جا کر کریش ہو گیا۔ اس حادثے میں 157 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ یہ ایئر کرافٹ بھی بوئنگ کمپنی کا 737 میکس تھا، سیم جہاز کا ماڈل، اور 5 مہینوں میں دوسرا کریش۔ ٹوٹل 344 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ انویسٹیگیشن میں معلوم پڑا کہ دونوں ایئر کرافٹس کا کریش ہونے سے پہلے بیہیویئر کافی عجیب اور ملتا جلتا تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے بوئنگ 737 میکس میں ایک ایسا فلا ڈھونڈ نکالا جس کی وجہ سے یہ دونوں پلین کریش ہوئے تھے۔ یہ فلا کیا تھا، یہ جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بوئنگ اس لاپرواہ رویے تک پہنچ کیسے گئی۔ بوئنگ کمپنی پہلے صرف ایک انجینئرنگ کمپنی ہوا کرتی تھی۔ 1916 میں ولیم ای بوئنگ نے کمپنی کی بنیاد ڈالی، جو پہلے صرف راکٹس، سیٹلائٹس اور ایئر پلینز کی ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کرتے تھے۔ 1969 میں بوئنگ نے اپنا مشہور زمانہ بوئنگ 747 لانچ کیا، جس کو کوئن آف دی اسکائز کا لقب دیا گیا تھا۔ جہاز کا یہ ماڈل ہوائی سفر میں ایک نیا انقلاب لے کر آیا۔ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ if it's not Boeing, I am not going۔ یعنی بوئنگ پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس جہاز کے علاوہ لوگ کسی اور میں سفر ہی نہیں کرتے تھے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ بوئنگ کا یہ ٹرسٹ لیول اس حد تک گر چکا ہے؟ یہ 2024 میں بوئنگ جہاز کے ساتھ ہوئے حادثات کی ایک لسٹ ہے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف 2024 جنوری میں ہی بوئنگ کے 5 جہاز چھوٹے بڑے حادثات کی لپیٹ میں آئے ہیں۔
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि बोइंग की बर्बादी का अमल 1997 में शुरू हुआ था। 1990s में जब अमेरिका और सोवियत की कोल्ड वॉर खत्म हुई तो उस वक्त बोइंग की इनकम पर भी काफी फर्क पड़ा, क्योंकि बोइंग एक इंजीनियरिंग फर्म थी जो अमेरिकन मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती थी, और जाहिर है कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया। इस डर से कि इनकी इनकम पर फर्क ना पड़े, इन्होंने अपने कॉम्पिटिटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस को $14 बिलियन यानी आज के करीब 1150 अरब रुपयों में खरीद कर खुद को एयरलाइन इंडस्ट्री का अकेला बेताज बादशाह डिक्लेयर कर दिया। एविएशन इंडस्ट्री के इस सबसे बड़े मर्जर के बाद बोइंग ने अपने आप को इंजीनियरिंग फर्म से एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया। जिनका काम था परफेक्ट जहाज बनाना, वो अब स्टॉक मार्केट में आकर अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट और लॉस को देखने में लग गए। बोइंग अपने कंपटीटर मैकडॉनल्ड डगलस को खरीदकर पूरी एविएशन इंडस्ट्री पर अकेला राज तो करने लगा, लेकिन ये आजादी ज्यादा वक्त ना चल सकी। 2003 में बोइंग को टक्कर देने के लिए यूरोपियन एयरलाइन मैन्युफैक्चरर एयरबस मैदान में आ गया। 2010 में बोइंग की सेल्स को एक जोरदार झटका लगा जब एयरबस ने अपना A320 नियो लॉन्च किया। ये मॉडल एयरबस ने खास मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए डिजाइन किया था। इसका इंजन खास तौर पर फ्यूल एफिशिएंट बनाया गया था, यानी ये कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता था। उसी साल के दिसंबर में एयरबस A320 नियो के 667 यूनिट्स सिर्फ एक ही हफ्ते में बिक गए। एयरबस की इस कामयाबी ने बोइंग के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। वो बोइंग जो पिछली कई दहाइयों से इस इंडस्ट्री पर अकेला राज कर रहा था, उसको इतने ऑर्डर्स पूरे साल में नहीं मिलते थे। अगले साल यानी 2011 में बोइंग ने एक नया जहाज 737 मैक्स के नाम से लॉन्च कर दिया। ये एयरबस A320 नियो की टक्कर में लॉन्च किया गया था। बोइंग के इस कदम ने एयरलाइन इंडस्ट्री में अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन ये वही जहाज का मॉडल था जिसका 2018 और 19 में भयानक क्रैश हुआ। असल में हड़बड़ाहट में आकर एयरबस से मार्केट शेयर वापस लेने के चक्कर में बोइंग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। बोइंग को ये नया जहाज लॉन्च करने की बहुत जल्दी थी। इन्होंने इस नए जहाज में एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट इंजन इंट्रोड्यूस करवाए, पर मसला ये था कि ये इंजन काफी बड़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इस नए इंजन के लिए जहाज की पूरी डिजाइनिंग दोबारा से होती, लेकिन बोइंग ने ऐसा नहीं किया। जल्दी के चक्कर में उन्होंने ये नया और बड़ा इंजन सालों पुराने एयरक्राफ्ट में ही लगा दिया, जिससे इंजन का वजन प्लेन के अगले पोर्शन में ज्यादा हो गया। यानी इस नए इंजन ने एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक्स बदल दी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से फ्लाइट के दौरान कुछ कंडीशंस में बोइंग 737 मैक्स की नोज ऊपर हो जाती थी। इस चीज को फिक्स करने के लिए बोइंग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम या फिर MCAS। आसान लफ्जों में समझा जाए तो ये सॉफ्टवेयर एक सेंसर की मदद से मालूम करता कि प्लेन का एंगल ऑफ अटैक क्या है, यानी उसकी नोज ऊपर है या नीचे। इस सेंसर को एंगल ऑफ अटैक सेंसर कहते हैं। अगर नोज जरूरत से ज्यादा ऊपर होती है तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एलिवेटर्स को डाउन करके जहाज की नोज को खुद ब खुद बिना पायलट के इनपुट के नीचे कर देता है। ये एक नया सिस्टम था जो इससे पहले मॉडल्स में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। होता यूं है कि जब भी कमर्शियल एयरप्लेन्स में कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उसके लिए पहले अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, टेस्टिंग होती है और पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में वक्त और पैसा दोनों बहुत ज्यादा लगते हैं, पर क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी तो उन्होंने MCAS के बारे में ना ही एयरलाइंस को कुछ बताया, ना ही पायलट्स को, और ना ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। उन्होंने सोचा कि जब सॉफ्टवेयर खुद ही प्लेन को सीधा कर सकता है तो फिर पायलट्स या एयरलाइंस को बताने की क्या जरूरत है। ये वो पॉइंट था जहां चीजें बिगड़ना शुरू हो गईं। जैसा कि आपने पहले जाना कि MCAS सिर्फ एक सेंसर पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ अटैक सेंसर। बोइंग को इस बात का इल्म नहीं था कि अगर ये सेंसर ही खराब हो गया तो फिर क्या होगा। अगर ये सेंसर खराब हो गया या फिर किसी वजह से इसने MCAS को गलत रीडिंग दे दी तो बिना पायलट इनपुट के सीधा चलता हुआ जहाज भी अचानक नोज डाइव करेगा, जिसको फिर कंट्रोल करना पायलट के बस की बात भी नहीं होगी। और ऐसा ही कुछ लायन एयरलाइन फ्लाइट 610 और इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के साथ हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन टीम को बोइंग की इस लापरवाही का इल्म हुआ तो वो दोनों प्लेन क्रैशेस का कसूरवार बोइंग समेत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर FAA को भी ठहराने लगे, क्योंकि FAA का ही काम था इस चीज की जांच करना।
जिस वक्त ये मामला गर्म हुआ तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स के 387 एयरक्राफ्ट्स सर्विस में थे और इन सबको एक साथ ग्राउंड कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। इसके नतीजे में एक तरफ बोइंग की स्टॉक प्राइस गिर गई और उनको 20 अरब डॉलर्स का घाटा हुआ। वहीं बोइंग के खिलाफ कोर्ट ने FAA को धोखे में रखने पर 2.5 अरब डॉलर्स का जुर्माना अलग से लगाया। बोइंग को एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ इनके अपने एम्प्लॉयज का ही रहा है। कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट की खबरें वहां काम करने वाले टेक्नीशियंस ने ही लीक की थी। सोशल मीडिया पर बोइंग फैक्ट्री की एक वीडियो लीक हुई जिसमें टेक्नीशियंस से पूछा गया कि क्या वो बोइंग के प्लेन्स पर सफर करना चाहेंगे। मौके पर मौजूद जितने एम्प्लॉयज थे उन्होंने साफ मना कर दिया। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में खौफ की एक लहर दौड़ गई। फैक्ट्री टेक्नीशियंस ने पुराने जहाज के पार्ट्स नए जहाजों में लगाने का भी हैरान कुन इंकशाफ किया। वो जहाज जो दुनिया भर की एयरलाइंस को डिलीवर भी किए जा चुके थे। तमाम एयरलाइंस ने अपने अपने बोइंग 737 मैक्स की इंस्पेक्शन करवाई, जिस पर मालूम पड़ा कि कहीं पर रिविट्स सही से नहीं लगाई गई तो कहीं पर पुराने पुर्जे वो भी लूज पड़े थे। नवंबर 2020 में तमाम ग्राउंड हुए 737 मैक्स को इंस्पेक्शन, पायलट ट्रेनिंग और कुछ चेंजेस के बाद दोबारा से सर्विस कर दिया गया। पर बोइंग की रेपुटेशन पर लगा दाग अभी धुला ही नहीं था कि एक और मसला खड़ा हो गया। बोइंग में काम करने वाला एक एम्प्लॉय विसल ब्लोअर यानी मुखबिर बन गया और उसने रिटायरमेंट के बाद बोइंग में होने वाली बेज़ाब्तियों की कहानी मीडिया पर लीक कर दी। 32 सालों तक बोइंग में काम करने वाले जॉन बार्नेट 2010 से 2017 तक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। 2016 में अपनी रिटायरमेंट से पहले बार्नेट का कहना था कि बोइंग के एक सीनियर मैनेजर ने स्क्रैप हाइड्रोलिक ट्यूब प्लेन में इंस्टॉल किया। इस तरह के और भी कई एक्शंस बार्नेट ने नोटिस किए जिसमें पुराने इस्तेमाल शुदा पार्ट्स नए प्लेन में लगाए जाते थे। बार्नेट ने कई कंप्लेंट्स भी की, लेकिन इसका बोइंग की सीनियर मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके नतीजे में इसको डिग्रेड करके किसी छोटी पोस्ट पर लगा दिया गया। 2017 में अपनी रिटायरमेंट के बाद बार्नेट ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की और बोइंग में होने वाली सारी मिसमैनेजमेंट के सबूत भी दिए। 4 सालों तक ये केस चलता रहा, लेकिन बार्नेट ये केस हार गए। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील भी की, जिसका फैसला अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा 2024 में जब अलास्कन एयरलाइन के बोइंग 737 मैक्स का दरवाजा हवा में ही निकल गया तो उसके बाद बार्नेट ने बोइंग कंपनी पर एक और लॉ सूट कर दिया। 9 मार्च 2024 को कोर्ट में इस केस की तीसरी पेशी थी, लेकिन उस दिन जॉन बार्नेट कोर्ट में पेश नहीं हो सके, बल्कि वो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। जी हाँ, अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो वो सुसाइड नहीं होगी। पुलिस ने बताया कि जॉन ने अपने आप को खुद गोली मारी है, लेकिन क्योंकि इनकी मौत से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, इसीलिए पुलिस इनकी मौत पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब क्योंकि जॉन बार्नेट ही नहीं रहे तो बोइंग के खिलाफ केस का क्या होगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां बोइंग की मार्केट वैल्यू पहले ही डाउन ट्रेंड में थी, अलास्कन एयरलाइन के साथ हुए हादसे और जॉन बार्नेट की मौत के बाद इनके स्टॉक्स को दोबारा से एक झटका लगा है। पैसेंजर्स और एयरलाइंस के बीच जो बोइंग का भरोसा टूटा है, उसको वापस से बहाल करने में शायद बोइंग को अगले कई साल लग जाए।